Welcome to last video of connective tissue. Now today we will discuss blood. Blood is fluid connective tissue. Study of blood is known as hematology. Heme word is used for blood. Hematology. Study of blood is hematology. Formation of blood cells. If we see the components of blood, there are three different type of formed elements: RBCs, WBCs, platelets. Formation of all these blood cells will take place in bone marrow. So there is a common term for formation of blood. Formation of blood cell is known as hemopoiesis or hematopoiesis. Blood is a specialized connective tissue. Blood is a fluid connective tissue. Blood cells do not secrete fibers and matrix. If we compare feature of rest of the connective tissue, in all connective tissue, different cells are there. Say chondrocyte cells are there, osteocyte cells are there, which secrete extracellular matrix. But in case of bone, the cells do not secrete fibers and matrix. If we talk about volume of blood in a normal healthy person, there is about 5 to 6 liter of blood. pH of blood is 7.4. Our blood is slightly alkaline. 7.4 pH is very essential to have oxygen in the blood. If blood pH is decreased, amount of oxygen in blood will decrease. So pH of blood is 7.4. So these are some of the basic features and basic terms associated with blood. Components of blood. There are two components of blood. The fluid part of blood is known as plasma. Watery secretion है, watery part है. Plasma constitute about 55% of the blood. 45% of the blood is formed elements, and these formed elements are of three types: RBCs, WBCs and platelets. So plasma constitute 55% and corpuscles constitute 45% of blood. So that's all about component of blood. If we talk about plasma, plasma is straw colored viscous fluid having high viscosity, 90 to 92% water. This is very important data. In plasma, 90 to 92% is water. Beside this, plasma is having different kind of substance. Heparin. Heparin, earlier we have discussed that is this heparin secreted by mast cells of the connective tissue. Basophil of blood will also secrete heparin. और function आपको याद है heparin का? Heparin is an anticoagulant. Anticoagulant means it will prevent clotting of blood in intact blood vessel. जब तक हमारी blood vessel में कोई damage नहीं है, कोई injury नहीं है, heparin will prevent clotting of the blood. Gases are there in plasma. Some amount of, if we talk about oxygen, large amount of oxygen is present in RBCs, small amount is present in plasma. If we talk about CO2, major transportation of CO2 takes place through plasma. Antibodies. Antibodies are the proteinous substance which fight against infection. So antibodies also circulate through blood. Hormones secreted by endocrine glands, released into blood, and through blood circulation they reach to different part of body. तो यहाँ से आपको function भी याद रहने चाहिए कि प्लाज्मा के जो blood के functions क्या हैं. So blood help in transportation of gases. Antibodies है, it means it play very important role in defense. हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू. ब्लड ऑल्सो हैविंग न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सब्सटेंसेस, विटामिन्स. सो न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. Nitrogenous waste. Different nitrogenous waste are produced by different part of body, and these body cell release nitrogenous waste into blood, और blood के through वो excretory organ के पास जाएंगे, and from here they are removed from the body. Plasma is having so many clotting factors. Clotting factors, actually these are the proteinaceous factors which are associated with process of clotting. Actually these clotting factors are present in inactive form. Plasma के अंदर जो clotting factors हैं वो inactive form में present होते हैं, और जब भी blood vessel damage होती है, whenever there is an injury, क्या होगा? These clotting factors are activated and this will result in formation of blood clot. Circulatory system के अंदर हम ये topic पढ़ेंगे, how does blood coagulation takes place.
Different type of minerals are also present in plasma. इसके अलावा जो सबसे important point है जो हमने next slide में mention किया है that plasma proteins, 6 to 8% plasma proteins are there. Again, data is very important. You have to learn it. One more term is serum. Serum means plasma without clotting factor. Plasma without clotting factor is known as serum. Means serum cannot clot. प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम. अगर हम प्लाज्मा को बाहर टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, प्लाज्मा इज हैविंग एबिलिटी टू क्लोट, लेकिन अगर हम सीरम को रखेंगे तो सीरम क्लोट नहीं होगा बिकॉज सीरम में क्लोटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट. Plasma protein, 6 to 8% proteins are present in plasma. The name of plasma protein are albumin, globulin, prothrombin, fibrinogen. Prothrombin and fibrinogen are associated with blood clotting. Very important. The name of protein which are involved in clotting of blood is prothrombin and fibrinogen. The meaning, the word pro means inactive form. This thrombin protein is present in inactive form known as prothrombin. In the same way here word ogen is written. Fibrinogen. Fibrinogen is again inactive form of fibrin. So prothrombin and fibrinogen proteins are synthesized in inactive form and they are associated with clotting of blood. Albumin, globulin. Two more protein are albumin and globulin. Albumin protein is responsible for maintaining osmotic pressure. No doubt all other protein are also involved, but main role is exhibited by albumin. Albumin is present in more amount as compared to other proteins. Albumin maintain osmotic pressure and does not allow water to move out of the blood vessels and thus help in maintaining blood volume. In next slide you will be able to know how albumin help in maintaining volume of the blood. Globulin protein. Globulin proteins are of three types: alpha, beta and gamma. Gamma globulin are nothing but antibodies. Antibodies are proteinaceous substance. They are made up of protein gamma globulin and these antibodies are synthesized by a type of WBC known as lymphocyte, B lymphocyte. B lymphocyte secrete antibodies and they are involved in defense. If we are having particular kind of disease or infection, our body will synthesize antibodies and these antibodies will circulate in blood. It means during infection in our blood there is increased synthesis of gamma globulin. Besides antibodies, gamma globulin are also involved in transportation of substances. Non-polar substance which are not soluble in water, for example lipid, steroid hormones, they are transported with the help of proteins. So globulin and other protein also help in transportation of substances. Heparin, prothrombin, fibrinogen, albumin all are produced by liver. हेपेरिन, प्रोथ्रम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन लीवर में प्रोड्यूस होते हैं. ग्लोब्यूलिन आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन लीवर के अलावा लिम्फोइड ऑर्गन में सिंथेसाइज होंगे. लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? ये वो ऑर्गन है जहां पर बी लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होगी बिकॉज जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे विल प्रोड्यूस this globulin protein. Antibodies are produced by B lymphocytes. So lymphoid organ are those organ where proliferation of B lymphocytes takes place. Like bone marrow है, इसके बाद lymph node है, thymus है, spleen है. These are the organ where proliferation of WBCs or lymphocyte takes place. So major plasma proteins are mainly जो plasma proteins है, they are synthesized by liver, but globulin along with liver it is also synthesized by lymphoid organ. Now यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 प्रेशर जो यहाँ पर एग्जर्ट होने वाले हैं. जैसे ही ब्लड कैपिलरी के थ्रू मूव करेगा, सबसे पहले फ्लोइंग ब्लड विल एग्जर्ट ए प्रेशर विच इज नोन एज ब्लड प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. What is hydrostatic pressure? This is blood pressure.
प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जब ब्लड इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करेगा तो ब्लड कैपिलरी की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम कहेंगे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। इट्स वैल्यू इज 35 mmHg। मरकरी कॉलम पे हम इसको मेजर करते हैं 35 mmHg। अब अगर हम देखें कैपिलरी एंड पे ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। इसके बाद ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन विल एक्सर्ट ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट डज नॉट अलाउ वाटर टू मूव आउट ऑफ द ब्लड। ओस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है 25 mm, यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर वाटर की एग्जिट को अपोज करेगा, जबकि जो ब्लड का प्रेशर है वो वाटर के एग्जिट को फेवर करेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो ब्लड ने कैपिलरी की वॉल पे लगाया। तो ध्यान रहे ये फिल्टरेशन को फेवर करेगा, ब्लड से वाटर जो बाहर आएगा उसको ब्लड प्रेशर फेवर करेगा। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? विच इज एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में जो पोलर पार्ट है दे विल फॉर्म सम बॉन्ड विद वाटर एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू मूव आउट, यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर अपोज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो जब ब्लड कैपिलरी एंड से फ्लो करेगा तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 35 mmHg, ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है 25 mmHg। तो 10 mmHg की वजह से जो वाटर है वो ब्लड से कहाँ आएगा? बाहर। अब जैसे जैसे ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरी से वीनस एंड की तरफ, वाटर बाहर आने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्लियर? ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और डिस्टेंस के साथ जब वो ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस से भी ब्लड का प्रेशर कम होगा, साथ में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हुआ है तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। ओस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? ओस्मोटिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन। और ध्यान रहे प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी कैपिलरी से बाहर नहीं आते। तो पहले भी 25 था, अब भी 25 है। अब जो नेट प्रेशर है वो 10 mmHg है, लेकिन वो किसकी तरफ है? वो कैपिलरी की तरफ है। तो टिश्यू फ्लूइड में जो भी एक्स्ट्रा वाटर आया था उसमें से कुछ वाटर वापस कहाँ चला जाएगा? वीनस एंड के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। सो हमने क्या पढ़ा है कि जब ब्लड कैपिलरी एंड से फ्लो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर टिश्यू फ्लूइड में आएगा, लेकिन जब ब्लड वीनस एंड के थ्रू फ्लो करेगा तो अपने साथ कुछ वाटर को ले जाएगा। तो इससे होगा क्या कि ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड इज नॉट एबल टू लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अदरवाइज आप ये सोचिए कि अगर ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते तो कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा वाटर ब्लड से बाहर जाता और ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता? कम। और अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की सप्लाई है ब्लड में वो अफेक्टेड होती। सो osmotic pressure is exerted by plasma protein and these plasma protein exert osmotic pressure and does not allow blood to lose large amount of water. Now एक कंडीशन हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे ओडीमा। ओडीमा होता है, ओडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो प्लाज्मा प्रोटीन भी कम होंगे। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम सिंथेसाइज हुए हैं तो क्या होगा? ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम है ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा और ब्लड ज्यादा अमाउंट में क्या लूज करेगा? वाटर। तो इस केस में ब्लड का जो अमाउंट होगा वो कम होगा और टिश्यू फ्लूइड का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। और टिश्यूज में वाटर अकुमुलेट होने की वजह से पफी अपीयरेंस होगी और उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओएडीमा। सो ओएडीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द body parts due to accumulation of more and more tissue fluid. टिश्यू फ्लूइड ज्यादा किस वजह से होगा? बिकॉज प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है उनका अमाउंट क्या है? कम। सो प्लाज्मा प्रोटीन एक्सर्ट ओस्मोटिक प्रेशर एंड ओस्मोटिक प्रेशर डज नॉट अलाउ वाटर टू मूव आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। वाटर का जो मूवमेंट है वो नेट प्रेशर पर डिपेंड करेगा। एक तो जो प्रेशर कैपिलरी ने एक्सर्ट किया है दैट इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और सिंपली ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की वजह से वाटर बाहर आएगा।
ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर अंदर ही रिटेन रहेगा, प्रोटीन उसे बाहर नहीं जाने देंगे। एक तीसरा प्रेशर जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, दैट इज टिश्यू फ्लूइड का जो प्रेशर है। अगर टिश्यू फ्लूइड की अमाउंट भी ज्यादा है तो ये भी फिल्टरेशन को अपोज करेगा। ब्लड का जो मूवमेंट होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा बाहर, उसको भी क्या करेगा, अपोज। यानी कि ब्लड से वाटर बाहर आएगा या नहीं आएगा, उसमें 3 प्रेशर काम करेंगे। एक तो ब्लड का प्रेशर इसको फेवर करेगा, प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो फिल्टरेशन को अपोज करेंगे, टिश्यू फ्लूइड का प्रेशर भी फिल्टरेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो दिस इज हाउ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। कमिंग टू फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, आज की डेट में हम इन्हें कह रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नंबर 1 फॉर्म्ड एलिमेंट इज RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड कलर्ड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, इसीलिए रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, RBCs और इरिथ्रोसाइट। फर्स्ट जस्ट हैव ए लुक, देखिए कितनी ज्यादा है ब्लड के अंदर, और ये स्वीट डिश बालूशाही के जैसी दिखाई दे रही है। देखो अगर हम आउटलाइन में देखें तो दे आर सर्कुलर, लेकिन दोनों फेस से देखें तो दे आर बाइकनकेव। ये देखो इधर से दिखाई दे रही है, अगर हम इसे खड़ा कर देते तो ऐसे देखो यहाँ से ये ऐसे बाइकनकेव। सो RBCs, अगर मैमल्स की RBCs देखें तो दे आर सर्कुलर बाइकनकेव, सर्कुलर एंड बाइकनकेव। छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं लेकिन बहुत सारी हैं, पढ़नी तो पड़ेंगी। स्मॉलेस्ट सेल RBC हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल है और सबसे ज्यादा नंबर में है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, मोस्ट न्यूमरस सेल ऑफ बॉडी। डायामीटर की बात करें 7 माइक्रोमीटर डायामीटर है। वर्टिब्रेट्स, फिश से लेकर मैमल्स तक, मैमल्स को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट्स में RBCs कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, ओवल हैं, अंडे जैसी दिखेंगी बेटा, एग, हैंस एग जैसी, न्यूक्लिएटेड हैं, ओवल हैं, बाई कॉन्वेक्स है। आप एग को देखो तो दोनों फेस से वो बाई कॉन्वेक्स है, न्यूक्लिएटेड है, ओवल हैं, बाई कॉन्वेक्स है। लेकिन मैमल्स में जो RBCs हैं दे आर सर्कुलर, बाई कॉन्केव, ई न्यूक्लिएटेड। बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। कैमल एंड लेमाज, लेमाज जो है एक अफ्रीकन एनिमल है, अफ्रीकन शिप को कह रहे हैं, इनमें RBCs न्यूक्लिएटेड हैं, ओवल है। ओवल शेप जो है वो जैसे कैमल हैं या लेमाज हैं वो डेजर्ट एरिया में रह सकते हैं, तो ड्राई कंडीशन के दौरान इनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, लॉट ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सो डिहाइड्रेशन के दौरान जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, थिक होगा। सो जो ओवल शेप्ड RBCs हैं दे कैन इजीली सर्कुलेट थ्रू थिक ब्लड and expand during dehydration. So this give them selective advantage to animals. क्या पढ़ा है, सभी मैमल्स में, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, कैमल और लेमाज को छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स RBCs सर्कुलर हैं, बाइकॉन्केव हैं, ई न्यूक्लिएटेड हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है। कैमल एंड लेमाज में RBC न्यूक्लिएटेड है, ओवल है। फ्रॉग जैसे फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें देखें तो RBC ओवल है, न्यूक्लिएटेड है, बाइकॉन्वेक्स है। यंग RBC न्यूक्लियस भी होता है, सारे सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं, बट जैसे जैसे RBC मैच्योर होगी न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनेली आर लॉस्ट। कौन सी स्टेज के दौरान लॉस्ट होंगे, रेटिकुलोसाइट। एक्चुअली RBCs रेड बोन मैरो में सिंथेसाइज होती हैं फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो, जिनसे सभी तरह की फॉर्म्ड एलिमेंट्स डेवलप होंगे। RBCs, ऑल द 5 टाइप ऑफ WBCs एंड प्लेटलेट्स, तो टोटल 7 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। तो सब के सब कहाँ सिंथेसाइज होंगे, रेड बोन मैरो में फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब मेन जो ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन जैसे जैसे ये फर्दर डिवाइड होंगी, डिफरेंशिएट होंगी, तो RBC की मैच्योरेशन में एक स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट स्टेज। रेटिकुलोसाइट स्टेज के दौरान RBC अपना न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेली को लॉस्ट कर देती है। फायदा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा
हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सकती है। हमने कहा आरबीसी स्मॉलेस्ट सेल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए आरबीसी हैव लॉस्ट न्यूक्लियस एज वेल एज ऑल द ऑर्गेनेली। इसके अलावा एक और एडवांटेज देखें, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होगा, दे रेस्पायर एनारोबिकली। इसलिए इनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कभी भी उस ऑक्सीजन को खुद के लिए यूज नहीं करेंगी। So this is also advantageous for other part of body. So RBCs में जो respiration होगा वो anaerobic होगा because they do not have mitochondria. न्यूक्लियस नहीं है, डिवाइड नहीं करेंगी, बॉडी की अकेली ऐसी सेल हैं जो लिविंग है विदाउट न्यूक्लियस। लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस इज RBCs। अगर हम बात करें बाइकॉन्केव शेप की, तो बाइकॉन्केव शेप का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। शेप देखो, अगर ये सीधा होता फ्लैट और अब ये नीचे की तरफ हो गई है, तो दोनों केस में देखें तो सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा हुआ है? नो डाउट जब ये कॉन्केव है। एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में भी नो डाउट सरफेस एरिया बढ़ेगा, कॉन्केव में भी सरफेस एरिया बढ़ेगा। पहले हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कॉन्केव शेप होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया है, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ है? कम हुआ है। अगर कॉन्वेक्स होता तो वॉल्यूम भी बढ़ता और सरफेस एरिया भी। यहाँ कॉन्केव होने की वजह से, ये देखो यहां से अंदर की तरफ चली गई है, कॉन्केव होने की वजह से वॉल्यूम आरबीसी का कम हो गया है और सरफेस एरिया क्या हो गया है? ज्यादा। और ये जो फैक्टर है वो फेवर करेगा कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होगा, जैसे ऑक्सीजन की जो एंट्री होगी आरबीसी में या ऑक्सीजन का एग्जिट होगा, वो बहुत फास्ट होगा। बिकॉज अगर हम देखें, स्मॉलेस्ट सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, स्मॉल साइज्ड सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी सेल है और वो एक क्यूब है, क्योंकि क्यूब का हमें कैलकुलेट करना इजी रहेगा, एरिया और वॉल्यूम। मान लीजिए कोई क्यूब है जिसकी जो वन साइड है L है, सपोज वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? दैट विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया, एक साइड 1 है तो एक साइड का होगा 1 इंटू 1, और हमें मालूम है इसमें क्यूब में कितने फेस हैं? 6, तो सरफेस एरिया कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखें तो 6/1, यानी कि अगर क्यूब का जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम अगर 1 है तो सरफेस एरिया 6 होगा, मतलब वॉल्यूम 6 टाइम है। अब हम सरफेस एरिया को अब हम साइज को बढ़ाते हैं। इस क्यूब में हर साइड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये फैक्टर हम कई जगह डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमने अर्थवम में भी डिस्कस किया था, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पर देखिए, साइज बढ़ने पर वॉल्यूम बेटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया कितना होगा? 2 इंटू 2 एक फेस का और 6 फेस का 24। आप और भी आगे कर सकते हैं, और आगे जाएगा तो 56 और एक और वैल्यू रहेगी, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 24/8। ये देखिए, स्मॉल साइज्ड सेल में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज हाई। हम ये कहना चाह रहे हैं, स्मॉल साइज्ड सेल इज हैविंग हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। देखिए, अगर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया 6:1 है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? 6:1। लेकिन अगर साइज बढ़ाया है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? 3:1। 24:8 मीन्स 3:1। दूसरा फैक्टर, पहला पॉइंट क्या है? साइज बढ़ने पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगी। कैसे समझेंगे? साइज बढ़ने पर वॉल्यूम भी बढ़ा, साइज बढ़ने पर सरफेस एरिया भी बढ़ा, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ा? वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा। यहाँ देखो, वॉल्यूम 1 से 8 हो गया है और सरफेस एरिया 6 से 24। ऑन इंक्रीजिंग साइज, वॉल्यूम एज वेल एज सरफेस एरिया बोथ इंक्रीज, बट वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा होगा।
इसी वजह से जब हम सेल का साइज इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होगी। अब सरफेस एरिया वो पैरामीटर है जिसके थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा। अब देखो आरबीसीज में कितना मटेरियल आ सकता है, कितना हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, बाकी सब्सटेंस आ सकते हैं, वो वॉल्यूम डिसाइड करेगा। और सरफेस एरिया डिसाइड करेगा कि एक टाइम पर कितना मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अब किसी भी स्ट्रक्चर का अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा तो उसमें एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। वॉल्यूम कम होने से उस सेल की जो रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वो भी कम होगी। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को हम अर्थवर्म पे अप्लाई करते हैं। अर्थवर्म की बॉडी देखो, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये देखो सेम वॉल्यूम वाला। मान लीजिए ये अर्थवर्म और ये सेल है, सपोज आप मान के चलो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा है, इधर ज्यादा है। तो अर्थवर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो स्किन के थ्रू हो रहा है वो फास्ट होगा। और यही वजह है कि अर्थवर्म में कोई और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने की जरूरत नहीं है। स्किन इज एक्टिंग एज वंडरफुल रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ऑक्सीजन डिमांड को मीट आउट करने के लिए सफिशिएंट है। सो small sized cell are having high surface area to volume ratio. On increasing the size, surface area to volume ratio decrease. और जैसे जैसे surface area to volume ratio decrease होगी, वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम होने लगेगा और जो मटेरियल का जो एक्सचेंज है उसकी स्पीड कम होगी और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम एक जगह और कोरिलेट कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में देखें तो फर्स्ट लाइफ वाज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अमीबा जो यूनिसेलुलर है उसी सेल को बढ़ाकर स्पंज या हाइड्रा जैसे जितने साइज के एनिमल क्रिएट क्यों नहीं हुए, क्या जरूरत थी मल्टी सेलुलर एनिमल बनने की? तो आंसर इज वेरी सिंपल। जैसे जैसे हम सेल का साइज इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होगी और ज्यादा इंक्रीज करने पर जो वॉल्यूम का जो इंक्रीज होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सरफेस एरिया और सेल अपनी रिक्वायरमेंट को सफिशिएंटली मीट आउट नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो पहले ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे फिर मल्टी सेलुलर आए और ऑर्गेनिज्म का साइज, सेल का साइज बढ़ने की वजह से नहीं हुआ, किस वजह से हुआ? सेल का नंबर। एलिफेंट और रैट में अगर हम देखें तो सेल का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू रैट। Answer is body of elephant is having much more number of cell than the rat. So RBCs में अगर हम ये पॉइंट लगाएं कि RBCs जो हैं वो छोटी सेल हैं, उसका रीजन भी, उसका सिग्निफिकेंस भी ये है कि इनमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा? ज्यादा। कॉनकेव शेप भी कुछ हद तक सरफेस एरिया को और बढ़ाने में हेल्प कर रही है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और ज्यादा हो रहा है। कॉनकेव शेप का एक और इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आरबीसीज हैं दे आर एबल टू पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज और उन कैपिलरीज के थ्रू भी पास हो जाती है जिनका डायामीटर आरबीसी के डायामीटर से कम है। वो उन कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज आउट कर पाती हैं, अपने आप को मूव कर पाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉनकेव शेप। Some more facts about RBCs. RBCs are having hemoglobin और हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है दैट इज 12 to 16 ग्राम HB is present per 100 ml of blood. RBCs are having red colored pigment hemoglobin. Hemoglobin is a chromoprotein. Chroma means color because it is giving color. Metalloprotein because it is having metal ion. Hemoglobin को हमने conjugated protein में पढ़ा है. Hemoglobin is having heme and प्रोटीन पार्ट नोन एज ग्लोबिन। 4 ग्लोबिन चेन है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन और जो हीम पोर्शन है उसमें सेंट्रली लोकेटेड आयरन एटम इज प्रेजेंट। Hemoglobin play very important role in transportation of oxygen as well as carbon dioxide. Hemoglobin can bind reversibly with oxygen as well as CO2. Reversible binding है और ये जो इसका जो नेचर है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा या CO2 के साथ जुड़ेगा वो गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। बायस्ड है हीमोग्लोबिन, पक्षपात करता
है, अगर O2 ज्यादा है तो O2 से जुड़ेगा, CO2 ज्यादा है तो CO2 से। और इसकी ये प्रॉपर्टी, हीमोग्लोबिन की ये प्रॉपर्टी ऑक्सीजन को अपटेक करने में और डिलीवर करने में हेल्प करती है। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। सो हीमोग्लोबिन is responsible for transportation of oxygen as well as CO2। आरबीसी काउंट की बात करें, मोस्ट न्यूमरस सेल हमने कहा, डाटा आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। सोचिए पर क्यूबिक मिलीमीटर कितना छोटा एरिया है, इतने एरिया में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज आर देयर। 1 HB molecule, 1 molecule of hemoglobin can combine with 4 molecule of oxygen। एक हीमोग्लोबिन में, कैसे समझेंगे इसको, एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 4 ग्लोबिन चेन के साथ 4 हीम मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एक हीम में 1 आयरन, तो 4 हीम में 4 आयरन, and 1 iron can combine with 1 molecule of oxygen। So 4 iron can combine with 4 molecule of oxygen। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए थे। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा। और ध्यान रहे यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे अलग अलग, OO एटॉमिक ऑक्सीजन जुड़ती है, ना कि O2। आरबीसीज के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये भी हमने पहले पढ़ा है। आपको तुरंत आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको माइंड में रिटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम कहें कि ये आपने पहले पढ़ा है, यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि कहाँ पढ़ा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फास्टेस्ट नॉन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इनटू वाटर। याद आया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक और इंफॉर्मेशन भी पढ़ी है हमने इसमें, कोफैक्टर कौन प्रेजेंट होता है, जिंक। इट इज जिंक कंटेनिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट इन आरबीसी, थोड़ी बहुत अमाउंट में प्लाज्मा में भी होता है। यस, यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करने के लिए हमने इस स्लाइड को यूज किया है, अदरवाइज अर्लियर वी हैव यूज। ये देखिए, दिस इज आयरन, ये आयरन नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ना होगा तो बॉन्ड बनेगी ऐसे, एक यहाँ O जुड़ेगा और इसी तरह एक और यहाँ एटॉमिक ऑक्सीजन जुड़ेगी। यहाँ पर आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन, आयरन सेंट्रली प्लेस्ड आयरन है यहाँ पर, कंबाइन विद ऑक्सीजन। एक हीम में 1 आयरन, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम। ये देखिए, 1 हीम, 2 हीम, 3 हीम, 4 हीम, और 4 हीम में 4 आयरन एटम। ये देखो ब्लू कलर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। 4 हीम में 4 आयरन और 4 आयरन जुड़ेंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमेटोक्रिट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम, ब्लड में कितना परसेंट आरबीसीज है वो कहलाएगा हीमेटोक्रिट वैल्यू। परसेंटेज ऑफ आरबीसीज विद इन द ब्लड इज हीमेटोक्रिट वैल्यू। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ब्लड इज टेकन आउट एंड इज इन ए टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब रोटेट करेंगे एट ए वेरी हाई स्पीड। फॉर्म्ड एलिमेंट की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये नीचे सेटल हो जाएंगी और प्लाज्मा ऊपर रहेगा। यहां पर ये जो कलर्ड पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली आरबीसी एंड दिस इज हीमेटोक्रिट वैल्यू। ये जो बफी कोट शो किया हुआ है दैट इज 1%, ये किसकी वजह से होगा, ये होगा व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स की फॉर्म में। So this is normal hematocrit value और packed cell volume, percentage of RBCs in blood। 2 टर्म आगे दी गई है, पोलीसाइथीमिया एंड एनीमिया। समझ आ ही रहा होगा आई थिंक। अगर आरबीसीज का नंबर ज्यादा है पोलीसाइथीमिया, और अगर आरबीसीज का नंबर कम है एनीमिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज नोन एज पोलीसाइथीमिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज नोन एज एनीमिया। Now we will discuss formation of RBCs, कहाँ बनती हैं, पहले कहाँ बनती थी, अब कहाँ बनती हैं। आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए वर्ड हम यूज करेंगे इरिथ्रोपोइसिस, समझ के लर्न करना है। हीमोपोइसिस, इरिथ्रो, आरबीसीज आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। कहाँ
कहाँ बनती हैं आरबीसीज? वेरी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस आरबीसीज बनेंगी यॉर्क सैक में. यॉर्क सैक इज एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एट वेरी अर्ली स्टेज एम्ब्रियो इज हैविंग 4 मेम्ब्रेन, जिसमें से एक मेम्ब्रेन का नाम है यॉर्क सैक. सो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन यॉर्क सैक. उसके बाद लीवर एंड स्प्लीन टेम्परेरी हीमोपोएटिक टिश्यू का काम करेंगे, जहां पर आरबीसी फॉर्मेशन होंगी. फाइनल स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट और बर्थ के बाद डेथ तक आरबीसीज कहाँ बनेंगी? रेड बोन मैरो में. ये हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज रेड बोन मैरो, कहाँ मिलेगा, कौन सी बोन में मिलेगा, ये सब हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए चाहिए फोलिक एसिड एंड विटामिन B12. विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. और यही वजह है कि प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन B12 और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि जो आरबीसी मैच्योरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो. लाइफ स्पेन है वो आरबीसीज का, दैट इज 128 डेज. अगेन इंफॉर्मेटरी नॉलेज है. Just have a look at surface view of RBC. This is side view. यहाँ पर हमने RBC को कट किया है. जैसे ये RBC है, टॉप व्यू है. अगर हम इसको कट करेंगे तो ये साइड से इस तरह के दिखाई देगी. तो देखिए एक बाइकॉनकेव है ऐसे और ऐसे, बाइकॉनकेव है और सर्कुलर है. Dead RBCs are phagocytized in spleen and liver. पीछे हमने बात की लाइफ स्पेन ऑफ RBCs 120 डेज. जैसे जैसे RBCs मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, डेथ की तरफ बढ़ेगी, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो डिग्रेड होने लगेगा. आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाएंगी और डेड आरबीसीज आर फैगोसाइटाइज्ड. फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ करना और बाद में उनको डाइजेस्ट करना, ताकि जो स्पेस है वो क्लियर हो सके और नई आरबीसीज को रहने के लिए जगह मिल सके. दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीमोबिलाइज हो सके. तो जब आरबीसीज की फैगोसाइटोसिस होगी लीवर एंड स्प्लीन में, hemoglobin is degraded into iron and bile pigments. Bile pigments कौन कौन है? bilirubin, biliverdin, and these bile pigments are secreted into bile by liver. लिवर बाइल पिगमेंट्स को बाइल की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालेगा. लिवर से इसको कहाँ ले जाएगा? गाल ब्लैडर में. और गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कहाँ आ जाएंगे? ड्यूोडेनम में. ये सब हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, हो सकता है आपने 10th में भी पढ़ा हो. बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स हैं. दे आर रिलीज्ड इनटू alimentary canal and from here they are excreted. Very important to know, bilirubin, biliverdin excretory waste product हैं. अगर ये प्रोडक्ट बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हैं, इनका कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगेगा. दे विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन और डिजीज का नाम रहेगा जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम कहते हैं. नेल्स एंड आई कलर जो है, स्किन है वो हमारी येलोइश दिखाई देने लगेगी. दे विल ऑल्सो कॉज मेंटल डिग्रेडेशन और सीवियर कंडीशन में मे लीड टू death of the person. So important to know, bilirubin, biliverdin bile pigments हैं. They are non iron, iron नहीं है इनमें. They are non iron degradation product of hemoglobin. अगर रिमूव नहीं होंगे तो होगा जॉन्डिस. और इनको रिमूव कौन करता है? लीवर. इसका मतलब लीवर का एक्सक्रीटरी रोल भी है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाए तो आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो. नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर शुड प्रेजेंट टॉपिक इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे. बट ऐसा नहीं है कि वो फनी लग रहा है या आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. यू आर एंजॉइंग इट. माई डियर स्टूडेंट्स, 11th and 12th में you have to understand the topic and then you have to learn it. Subject is very vast and you are not supposed to waste even a single minute. जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू रियलाइज कि क्यों वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू आर नॉट अटेंडिंग फॉर्मल क्लासेस. मोबाइल फोन आपके हाथ में है, पेरेंट्स भी आपको मना नहीं कर पा रहे हैं. और सो मैनी चैनल्स आर देयर, सो मैनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर वेयर यू कैन गेन नॉलेज. ये नहीं कह रहे कि आपको चैनल्स नहीं पढ़ने हैं, बट यू हैव टू चूज वन. एंड
यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम ऑन सर्चिंग एंड कि यस ये तो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। नॉलेज ज़्यादा या कम का मतलब नहीं है, नॉलेज अप टू द मार्क होनी चाहिए। जितना ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए उतना पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका दिमाग ज़्यादा रिटेन रख सकता है तो यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा, अदरवाइज बाद में आपको रियलाइज होगा कि जो भी एक्स्ट्रा बातें हमने पढ़ी या सीखी दैट वाज ऑल जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग विल बी आस्क्ड in the exam. So in this case you have to be self disciplined, self motivated and keep yourself simple और topic oriented रहेंगे कि जैसे समझाया अब उसको आपको लर्न करना है ताकि वो आपके माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो रिटेन रह सके. Some more information relating with RBCs. RBCs, increase in number of RBCs known as polycythemia. When does it will take place? When you go at high altitude, चढ़ाई चढ़ रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगा. बॉडी की एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, ऑक्सीजन का यूज ज़्यादा होगा, सो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा. और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है दिस इज सेंस्ड बाय किडनी, और अब हमारी किडनी एक हार्मोन सिक्रीट करेंगी जिसे हम कहेंगे इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी. कब? जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है. तो उस दौरान ये इरिथ्रोपोएटिन सिग्नल देगा रेड बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आरबीसीज. अगर लेक्चर सुनते सुनते अभी आप एक्सरसाइज करने लग जाएं तो आपकी बॉडी में आरबीसीज का लेवल बढ़ जाएगा. क्रेडिट गोज टू हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन. इरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी एंड दिस हार्मोन विल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन फ्रॉम रेड बोन मैरो. और अल्टीमेटली जो है ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में क्या हो जाएगा? नॉर्मल. सो दिस इज polycythemia. Decrease in number of RBC. Decrease in number of RBC is known as erythrocytopenia. कहाँ होगा? एनीमिया में. इन एनीमिया बहुत अलग अलग तरह का एनीमिया है. द मोस्ट कॉमन एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. अगर बॉडी में डाइट में आयरन कम है तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा, जो हीमोग्लोबिन होगा आरबीसी में वो कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल रहेगा ब्लड में वो कम रहेगा. सो डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोसाइटोपिनिया and it will take place in anemia. Moving on to second type of formed element, that is leukocyte. Leuko means colorless. WBCs, white blood corpuscles, are also known as leukocytes. Colorless, has nucleus as well as all the cell organelle. They are least in number. RBC के कंपैरिजन में अगर हम बात करें नंबर इज वेरी वेरी लेस. प्लेटलेट से भी काफी कम है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे आर लीस्ट इन नंबर. कितना नंबर है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. लेकिन अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें, अगेन देयर लाइफ स्पेन इज वेरी शॉर्ट. दे आर जस्ट एबल टू सर्वाइव ओनली फॉर 3 to 4 days. हालांकि कुछ लिम्फोसाइट्स हैं जो कुछ सालों तक भी सर्वाइव करती हैं, पर मोस्टली जो WBCs हैं दे आर हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पेन. अगेन ऑल द 3 type of formed elements are formed in red bone marrow. So WBCs are formed in red bone marrow. One interesting feature of WBC is diapedesis. Diapedesis means they are able to squeeze out of blood capillaries. ये देखिए, ये blood capillary है. पीछे हमने एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो. ये कोई इन्फेक्टेड सेल है. इन्फेक्टेड सेल विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, और ये केमिकल्स स्टिमुलेट करेंगे, सिग्नल देंगे रेड बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर WBCs. और दूसरा जो WBCs का मूवमेंट है वो कीमोटैक्सिक है. इन केमिकल्स की वजह से जो WBCs है वो माइग्रेट करके इस एरिया में आएंगी. अब ये आ तो गई हैं, हिस्टामिन की वजह से ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है. याद हो कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में हमने पढ़ा है कि हिस्टामिन की वजह से कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और अब ये WBCs देखो, ये यहाँ से ये चलते हुए आ रही हैं, इसके साथ अटैच हुई, देखो स्क्वीज आउट होकर यहाँ आ गई. सो दिस इज डायापेडेसिस. मूवमेंट ऑफ WBCs आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज डायापेडेसिस.
ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, जैसे हमने आरबीसी के लिए कहा पॉलीसाइथीमिया, इसी तरह ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, जैसे कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होगा। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया हम कहते हैं ब्लड कैंसर को, इन ब्लड कैंसर टाइप ऑफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया, ये आप कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आरबीसी का नंबर कम होना इरिथ्रोसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। Very important information that you have to learn. On the basis of presence of granules in the cytoplasm, WBCs are of two type. Granule है granulocyte, नहीं है agranulocyte. Granulocyte are of three type: neutrophil, eosinophil, basophil. Agranulocyte are of two type: monocyte, lymphocyte. Very interesting. 5 type of WBCs, 5 shape के न्यूक्लियस. Isn't amazing? 5 तरह की WBC में 5 तरह का न्यूक्लियस है. Shape of nucleus is different from each other. ग्रेन्यूलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. नाम देखिए, न्यूट्रल हैं, एसिडिक और बेसिक स्टेन पर, ना एसिडिक स्टेन लेती हैं ना बेसिक लेती हैं. बेसोफिल कैसी लेंगी? बेसिक. इओसिनोफिल कैसी लेंगी? एसिडिक. इओसिन स्टेन का नाम है, एसिड स्टेन का नाम है. दे कैन बी स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन. ये बेसिक स्टेन लेंगे और ये न्यूट्रल है. न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. आगे भी और फीचर्स पढ़ेंगे. न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, ये एसिड स्टेन लेंगे, ये बेसिक लेंगे. न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस इज देयर. इओसिनोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस है. यहां पर एस शेप्ड न्यूक्लियस है. अगर हम इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दे तो यस दिखाई देने लग जाएगा. एस शेप्ड न्यूक्लियस है. मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, एस शेप्ड न्यूक्लियस. These न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्यूल का साइज देखें हम, इन न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल का साइज छोटा होगा और ग्रेन्यूल बहुत ज्यादा है. यहाँ पे ग्रेन्यूल का साइज बड़ा है और ग्रेन्यूल बहुत ज्यादा है. बेसोफिल में ग्रेन्यूल का साइज बड़ा है लेकिन ग्रेन्यूल कम है. हालांकि डायग्राम में इतना क्लैरिटी नहीं है यहाँ. न्यूट्रोफिल में abundant fine granules, fine means very small in size, abundant fine granules. Here abundant coarse granule, बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल है, बड़े साइज के हैं और ज्यादा हैं. यहाँ पर few coarse granule, few मतलब कम, coarse means बड़े, बड़े साइज के ग्रेन्यूल लेकिन कम है. न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करती हैं, एनगल्फ करती हैं माइक्रोब को, जस्ट लाइक अमीबा. इओसिनोफिल एलर्जी में रिस्पॉन्स करती हैं. जब किसी पर्सन को एलर्जी है और आप ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी काउंट में यू विल फाइंड कि आपकी ब्लड में इओसिनोफिल का नंबर ज्यादा हो चुका है. दूसरा, जो माइक्रोब फैगोसाइटोसिस नहीं करे जा सकते, जिनका साइज बड़ा है और दे कैन नॉट बी फैगोसाइटाइज्ड, उनको किल कौन करेगा? इओसिनोफिल. दे विल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड सर्टेन टॉक्सिन्स विच किल द माइक्रो. स्पेशली जो हेलमिन्स, एस हेलमिन्स है, प्लेटी हेलमिन्स है, उनके इन्फेक्शन में भी इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है. बेसोफिल, बेसोफिल मास्ट सेल की तरह फंक्शन करेंगे. मास्ट सेल का काम क्या है? याद आया? हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन. सो बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन. ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है. दे आर हैविंग लार्ज बीन शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप या बीन शेप्ड न्यूक्लियस है. सबसे बड़ी मोनोसाइट है, लार्ज बीन शेप्ड न्यूक्लियस. फैगोसाइटोसिस करेंगी. सो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस. लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट WBC है. ये डायग्राम साइज के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं है. स्मॉलेस्ट WBC है, लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस है लिम्फोसाइट. ग्रेन्यूल्स के बेस पे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल ग्रेन्यूलोसाइट हैं. मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ए ग्रेन्यूलोसाइट है. क्लियर? सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल. मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, एस शेप्ड न्यूक्लियस,
bean shaped nucleus, spherical nucleus. न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करेंगे. इयोसिनोफिल एसोसिएटेड विद एलर्जी एंड किल द हेलमिन्ट्स. बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन. लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी. दो तरह की होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट. आई थिंक थोड़ा आइडिया हो गया होगा क्या हम पढ़ने वाले हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टाइप ऑफ WBC, दैट इज न्यूट्रोफिल. Most abundant, 60 to 65% of total WBCs are neutrophil. See this diagram. बाकी जो आपको दिखाई दे रही हैं ये RBCs हैं, ये न्यूट्रोफिल है. देखो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, हैविंग मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जो शेप है वो हाईली वेरिएबल है, इसलिए हम इनको कहेंगे PMNL, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज. फर्स्ट कौन है? मोनोसाइट सबसे बड़ी है, साइज में दूसरे नंबर पर आती है न्यूट्रोफिल. मोस्ट अबंडेंट है 60 to 65%. अबंडेंट फाइन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. ग्रेन्यूल्स क्या है? दीज आर द नथिंग बट लाइसोसोम कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स. क्योंकि जब फेगोसाइटोसिस करेंगी तो माइक्रोब को एनगल्फ करने के बाद उसका क्या होगा? डाइजेशन, एंड दैट डाइजेशन इन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम. सो सबसे ज्यादा है, परसेंटेज भी बाकायदा याद होनी चाहिए, 60 to 65%. सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज है, अबंडेंट फाइन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. फेगोसाइटोसिस करेंगी, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज हाईली वेरिएबल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. अब हम पढ़ेंगे बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन. व्हाट इज बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन? टॉपिक थोड़ा जेनेटिक से रिलेटेड है, बट हम इसे फिलहाल के लिए कोरिलेट करेंगे न्यूट्रोफिल के साथ. मेल में अगर हम देखें तो 1X क्रोमोसोम है और फीमेल में 2X क्रोमोसोम है. अगर हम ह्यूमन मेल में देखें तो सेक्स क्रोमोसोम है XY और फीमेल में XX. मेल में क्या होता है कि दो में से एक X क्रोमोसोम अंडरगो कंडेंसेशन एंड रिमेन एज हीट्रोक्रोमेटिन. अब हीट्रोक्रोमेटिन आई थिंक आप पढ़ चुके हैं शायद. ओके, कुछ और तरीके से समझने की कोशिश करते. 2X क्रोमोसोम में से एक X क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, उसके लिए मैं वर्ड यूज करें हीट्रोक्रोमेटिन. हीट्रोक्रोमेटिन का मतलब हाईली कंडेंस्ड पार्ट है, ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है और इनएक्टिव है. और जब हम उसको स्टेन करेंगे तो दैट विल अपीयर एज ए ड्रम स्टिक. जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर एक स्वेलिंग है और ये इसकी स्टॉक है, तो इसको हम कह रहे हैं ड्रम स्टिक और सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी. नंबर ऑफ बार बॉडी हमेशा क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1. वैसे मेल के अंदर बार बॉडी नहीं मिलेंगी आपको, बार बॉडी कहाँ मिलेंगी? फीमेल में. न्यूक्लियस WBC के अलावा, न्यूट्रोफिल के अलावा ये बार बॉडी आपको क्लियरली विजिबल और कहाँ हो सकती हैं? बक्कल एपिथेलियम में. तो यही वजह है कि बक्कल एपिथेलियम को भी हम यूज करते हैं टू स्टडी सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी. तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है. सो व्हाट इज बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन? इट इज inactivated one of the X chromosome in female. मेल में एक X क्रोमोसोम है, फीमेल में 2X क्रोमोसोम है. तो एक X क्रोमोसोम हर वक्त इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और उस इनएक्टिवेटेड X क्रोमोसोम को ही हम क्या कहेंगे? बार बॉडी, सेक्स क्रोमेटिन और ड्रम स्टिक. और बार बॉडी का नंबर हमेशा क्या रहेगा? नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1. मेल में X क्रोमोसोम 1 है तो 1 - 1 0, तो मेल में कोई बार बॉडी नहीं होगी. फीमेल में 2X क्रोमोसोम है तो बार बॉडी होगी 1. इयोसिनोफिल 2 से 3% है टोटल का. बाइलोब्ड न्यूक्लियस है. अबंडेंट फाइन ग्रेन्यूल्स, नॉट फाइन, अबंडेंट कोर्स ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म. एलर्जी में इन्वॉल्व है, जिन पर्सन को एलर्जी है उनमें इयोसिनोफिल का नंबर ज्यादा होगा. और जो माइक्रोब फेगोसाइटाइज नहीं हो सकते, जिनका साइज बड़ा है, उनको किल करती हैं बाय रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम. स्पेशली जो हेलमिन्ट्स इन्फेक्शन है उस दौरान इयोसिनोफिल का नंबर ज्यादा होगा और इनको हम
हम एसिडिक स्टेन सच एज इओसिनोफिल से स्टेन कर सकते हैं। बेसोफिल, बेसोफिल लीस्ट इन नंबर, वो WBC जो देखो सबके लिए अलग अलग बातें हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, बेसोफिल सबसे कम है, 0.5 to 1% ऑफ टोटल है। एस शेप्ड न्यूक्लियस है, फ्यू कोर्स ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, दे विल रिलीज हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, सबके फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। हिपेरिन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। मास्ट सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू की वो सिक्रीट करती हैं। बेसोफिलो ब्लड ऑल्सो सिक्रीट हिपेरिन। और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है इस चैप्टर का नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, हिपेरिन हिस्टामिन आर सिक्रेटेड बाय बेसोफिल एंड मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हिस्टामिन इज इन्वॉल्वड इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, आज ही हमने पढ़ा है। सेरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है, लार्ज बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, क्या करेंगी? फैगोसाइटोसिस। पीछे मास्ट सेल में कनेक्टिव टिश्यू में एक वर्ड हमने पढ़ा था मैक्रोफाज। एक्चुअली मोनोसाइट ही ब्लड कैपिलरीज से बाहर आने के बाद किस में चेंज हो जाती हैं? मैक्रोफाज में। WBCs ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं, प्रोसेस को कहेंगे डायापेडेसिस। डायापेडेसिस के बाद मोनोसाइट गोट ट्रांसफॉर्म्ड इन मैक्रोफाज। They are 6 to 8% of total. So न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, फैगोसाइटोसिस करेंगी। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, मोनोसाइट में किडनी और बीन शेप्ड है। न्यूट्रोफिल सेकंड लार्जेस्ट है, मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC है। न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट है, मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। आपको सीधा सीधा भी याद होना चाहिए, आपको कंपैरिजन करके भी आना चाहिए कि कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही WBC है, दोनों ही फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है। डिफरेंस क्या है? न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट है, मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट है। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब न्यूक्लियस है, मोनोसाइट में लार्ज किडनी और बीन शेप्ड न्यूक्लियस है। लिम्फोसाइट 20 to 25% ऑफ टोटल। ए ग्रेन्युलोसाइट की टाइप है, दे आर स्मॉलेस्ट WBC, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, बहुत बड़े साइज का स्फेरिकल न्यूक्लियस है विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्कैंटी साइटोप्लाज्म है। दे आर इन्वॉल्वड इन डिफेंस, दे आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। दो तरह की होती हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक्चुअली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज विल सर्कुलेट इन ब्लड एंड इनएक्टिवेट द माइक्रोब और टॉक्सिन रिलीज्ड बाय माइक्रोब। टी लिम्फोसाइट खुद किलर सेल का काम करेंगी, दे विल देमसेल्स गो टू साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन इम्यूनिटीज एंड एंटीबॉडीज आर नथिंग बट which protein? Gamma globulin. So that's all about different type of WBCs. Platelets or thrombocytes. These are not cell, these are actually cell fragments. अगर हम साइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इनका साइज RBC से भी छोटा है, बट एक्चुअली these are not cell, इसलिए हम RBC को स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी कह रहे हैं। These are not cell but actually cell fragment. They are formed from megakaryocyte. Megakaryocyte cells are actually present in bone marrow और उन cells के fragment को हम क्या कहेंगे? Platelets. These platelets are 1.5 to 3.5 lakh per cubic millimeter of blood. इसका मतलब इनका नंबर RBC से कम, WBC से ज्यादा है। Platelets release several factors which are required for blood clotting. और blood clotting process के दौरान जो platelets हैं, they will release certain factors जिसकी वजह से प्लाज्मा के जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे एंड इट विल रिजल्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग दैट वी विल डिस्कस लेटर इन सर्कुलेटरी सिस्टम।
Thrombocytosis. Decrease in number of platelets is known as thrombocytosis. In dengue fever, number of these platelets decreases. तो इसकी वजह से क्या होगा? There is a delay in process of blood clotting, and if blood vessels are ruptured or damaged, this will result in hemorrhage and may lead to death of the person. So that's all about thrombocytes. In last, we will study about functions of the blood. First is very simple. Blood का काम है different body parts को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना. इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे CO2 को लंग के पास भेजना फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, किडनीज के पास एक्सक्रीटरी वेस्ट लेकर जाना फॉर रिमूवल. इसी तरह ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट hormones from endocrine glands to target organs. So blood play very important role in transportation of different substances from one part of body to another. Regulatory functions. Blood maintain body temperature by absorbing and distributing heat. किस तरीके से? ब्लड हमारी स्किन में अगर हम देखें, सो ब्लड वेसल्स डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर. If we are doing strenuous exercise, heavy load of work we are doing, lot of muscle contraction will takes place and lot of ATP is used, and with the result lot of heat is liberated. In this situation, what will happen? Blood vessels of the skin will dilate, with the result large amount of heat is lost outside in form of sweating. और विंटर्स में क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, उनमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि स्किन के थ्रू बॉडी से हीट का लॉस ना हो. सो ब्लड हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर. ब्लड ऑल्सो मेंटेन पीएच. ब्लड के अंदर अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर. दीज प्रोटीन्स एक्ट एज पीएच बफर एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच. पीछे हमने अमीनो एसिड्स में डिस्कस किया है कि हाउ द अमीनो एसिड्स आर एक्टिंग एज पीएच बफर. इसके अलावा अगर हम देखें, पीएच को रेगुलेट करने में लंग्स का रोल है. CO2 इज स्लाइटली एसिडिक एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग एंड फ्रॉम लंग इट इज रिमूव्ड आउटसाइड. सो दस इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच. Kidney to some extent also remove proton from the body, H ion from the body. So blood from different part of body is transported to kidney, and from the kidney it is eliminated. जो nitrogenous waste है along with some H ion, they are excreted out from body in form of urine. So blood also play very important role in maintaining pH. HB का हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है that also play very important role as a buffer and does not allow change in pH when CO2 concentration increase or decrease in blood. In the same way, blood maintain adequate fluid volume in circulatory system. ये अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, they do not allow large amount of water to move out of the blood. So in this way, blood play regulatory function in maintaining temperature, pH and body fluid volume. Protective function, hemostasis means protection against blood loss. Plasma proteins, plasma is having so many clotting factors. Platelets also initiate process of clotting. So blood has certain substances which does not allow blood to come out of the blood vessel. Blood clotting process is there. So it is involved in hemostasis. प्रिवेंट इन्फेक्शंस, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन का रोल है. गामा ग्लोबुलिन आर नथिंग बट एंटीबॉडीज. दीज एंटीबॉडीज विल सर्कुलेट इन ब्लड एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. WBCs also fight against infection and protect us from different pathogens. Complement proteins क्या हैं? These complement proteins are also part of defense system. About 30 type of complement protein are present in blood, and these complement protein when activated, they will form pore in the membrane of microbe. With the result, water enter inside the body of microbe and it will undergo lysis. So blood also play very important role in protection. So blood is having regulatory function, distributive function and protective function.